Hello everyone. In this lecture I will explain firstly book exercise of chapter number 2 geography, and then I will explain question answers also. So let's start with MCQ. Pick the correct answer. First is, which one of the following is not a factor of soil formation? And the options are time, soil textures and organic matters. The answer is soil texture. Next is, which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? Options हैं shelter belts, mulching and terrace cultivations. And the answer is terrace cultivation. In previous lecture I have explained all. If you want to see, you can go and watch the video. Now third one is, which one of the following is not in favor of conservation of nature? Options: first as switch off the bulb when not in use, close the tap immediately after using, and dispose poly bags or poly packs after shopping. First, tick the first, switch off the bulb when not in use. Now match the following. First, land use, match with productive use of land. Second है humus, match with organic matter deposited on topsoil. Third one is rock dams, match with prevent soil erosion. Fourth है biosphere, match with narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Let's do true false. Ganga Brahmaputra plain of India is an overpopulated region. It's true. Water availability per person in India is declining. It's true. Rows of trees planted in the coastal area to check the wind movement is called intercropping. It's false. Fourth one, human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. False. Now let's do question answers. First question is, which are the two main climatic factors responsible for soil formation? जो दो फैक्टर्स हैं क्लाइमेटिक फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल के लिए, सॉयल फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल के लिए, वो कौन से हैं? सो द आंसर इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉयल फॉर्मेशन. सॉयल फॉर्मेशन के लिए जो टू फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक तो टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए और एक रेनफॉल होनी चाहिए. ओके, नाउ सेकेंड इज, राइट एनी टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. लैंड डिग्रेडेशन के लिए टू फैक्टर्स जो हैं वो रीज़न लिखो. मतलब जो लैंड की जो लेवल है वो गिर रहा है, डिग्रेडेशन हो रही है, उसका क्या कारण है? तो आंसर इज डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग. जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है और ओवरग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, कैटल्स के, मतलब ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जो एक ही जगह पे बार बार जो पशु हैं वहाँ पे वो चरते रहते हैं, उसको बोलते हैं ओवरग्रेजिंग. आर द टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. थर्ड इज, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. कि जो लैंड है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कैसे कंसिडर्ड हुई है होती है? लैंड इज कंसिडर्ड
an important resource because land is used for different purposes. लैंड डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होती है. वो कौन कौन से हैं? सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज. ये सारी कारण है जिसकी वजह से जो लैंड है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सुजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर. वाटर को कंजर्व करने के, बचाने के या सेव करने के. फर्स्ट वे इज फॉरेस्ट एंड other vegetation cover slows the surface runoff and replenish underground water. Number second, water harvesting is another method to save surface runoff. Number third is in dry region with high rates of evaporation. Now some extra question answers are also there. First question is define the term land use. And the answer is land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads, etc. is commonly termed as land use. Next question is write some methods of soil conservation. As you already read in chapter, I have explained in chapters. If you want to see, you can see there. Now the answer is some methods of soil conservation are as following. First is mulching, and the answer is the bare ground between plants is covered with a layer of organic matters like straw. It helps to retain soil moisture. मल्चिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे प्लांट्स लगाए हैं उसके बीच में स्ट्रॉ वगैरह जो रख दी जाती है, ठीक है, पराली फॉर एग्जांपल्स या कुछ प्लांट्स रख दिए जाते हैं. तो इससे क्या हो जाता है, वो जो सॉइल है उसका मॉइस्चर बना रहता है. दैट इज़ कॉल्ड मल्चिंग. नेक्स्ट इज टेरेस फॉर्मिंग. These are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. They can reduce surface runoff, soil erosions. जो टेरेस फॉर्मिंग है ये स्टीप जो ज़्यादा ढलान वाली जगह होती हैं वहाँ पे होती है. तो टेरेस फॉर्मिंग में एक खेत ऊपर बनाते हैं, फिर थोड़ी सी ढलान के नीचे बनाते हैं सो दैट कि जब पानी देते हैं फसलों को, प्लांट्स को, तो क्या होता है वो जो पानी, कुछ पानी जो है वो बह के नीचे आ जाता है. तो इससे सॉइल इरोजन का जो खतरा है वो कम होता है. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रोज एंड आर सोन एट सेम टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि डिफरेंट तरह की क्रॉप एक रोज़ में लगा दी जाती है. एक रो में एक क्रॉप और दूसरे रो में दूसरी क्रॉप. तो इससे क्या हो जाता है, रेन वॉश का जो खतरा होता है उससे उसका डर नहीं रहता. नाउ शेल्टर बेल्ट. एंड इन शेल्टर बेल्ट इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. शेल्टर बेल्ट में ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं, एक लाइन में प्लांट किए जाते हैं और जो विंड मूवमेंट होती है उसके हिसाब से देखा जाता है कि विंड मूवमेंट किधर है, ठीक है. सॉइल एरोजन जो है, सॉइल एरोजन या प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़. एज यू रेड इन द चैप्टर, आंसर इज़ 1% ऑफ वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर कॉन्टिनेंट्स.
What are the major contents of water? So the answer is discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemical and industries affiliates. Next is what is biosphere, and the answer is a narrow zone of contact between the lithosphere, biosphere and atmosphere is known as biosphere. Next is how forests are useful for human being, and the answer is there is the trees in the forest provides us timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil for growing crops, act as shelter belts, give us fruits, nuts, ऑयल, ग्राम्स एक्सेट्रा. जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी चीज़ें यूज़फुल हैं ह्यूमन बीइंग के लिए. शेल्टर बेल्ट का वर्क करते हैं, ह्यूमन के लिए शेल्टर का देते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, फ्रूट्स नट्स प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है राइट सम स्टेप टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड द आंसर इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. मैनी प्रोजेक्ट आर स्टार्टेड टू protect wildlife such as Project Tiger, Project Rhino, etc. Killing of wild animal is banned. तो नेशनल पार्क बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई है, बायोस्फीयर रिजर्वियर्स बनाए हुए हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ स्टार्ट किए गए हैं सच एज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट राइनो. मतलब इसमें ये जो टाइगर्स हैं या और जो वाइल्ड एनिमल है उनकी हंटिंग करना एक क्राइम है इसके अंडर, और जो भी ऐसा करता है उसको पनिश किया जाता है, फाइन किया जाता है. एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ बैन, और वाइल्ड एनिमल को मारना बैन किया गया है. सो ये चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स थे. At this note, I am going to end this lecture. Thank you and have a nice day.